Hi friends, once again I Sunil Gupta welcome you at the platform of Educami. Today we are in the lecture series of public administration and the many competitive aspects we have to make the discussion under the lecture series. Under this, I have to make the very great part of the discussion today, and this is related to the answer presentation skill in public administration. The stages of the answer presentation. This is the stages of answer presentation. The stages में देखते हैं, what kind of stages are going to be happen here. First important stage is there, finding locus and focus of the question. Locus and focus of question that is related to demand of the question. So what is called here? Demand of the question. क्वेश्चन का डिमांड क्या है, जो हमने कहा ना पहले वाले में कि देयर इज नीड ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो वी डिस्कस्ड हियर हाउ कैन यू फाइंड आउट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बाय मींस ऑफ लोकस एंड फोकस. दिस इज द टेक्निकल एस्पेक्ट टू फाइंड आउट लोकस एंड फोकस ऑफ द क्वेश्चन. जिस दिन तुम इसका मास्टरी हासिल कर लिए, यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट डिमांड एंड यू हैव टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अंडर ओनली द डिमांड. ग्रेट थिंग इज देयर, राइट. Second important is said to be finding direction of demand of the question, right? Finding direction of demand of the question. How can you find out direction of demand of the question? By analysis of the terminology. Comment, elucidate, examine, critical analyze. यार कहता क्या है ये, क्या करना है सिस्टम में, किधर जाऊं मैं? I will make the discussion under the second important stage here. Third important, drafting synoptical notes. तो वेरी इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी, जब तुम्हारे पास में डायरेक्शन क्लियर हो गया, डिमांड भी क्लियर हो गया, इंफॉर्मेशन भी है, तो अब करोगे क्या? यू हैव टू मेक द सिनॉप्टिकल नोट्स. ब्लू प्रिंट इज रिक्वायर्ड. हमने कहा था ना, ब्लू प्रिंट इज रिक्वायर्ड बिफोर द प्रेजेंटेशन. द ब्लू प्रिंट मस्ट बी मेड अंडर द सिनॉप्सिस. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लर्निंग स्टेज ब्लू प्रिंट बनाने में 10 मिनट लग जाते हैं. But then and thereafter, the repeated practices, it has to come to the 8 minute, 6 minute, 2 minutes, 1 minute. और बहुत ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस्ड होगा तो आंख बंद करोगे, तुम्हारे सामने सिनॉप्टिकल नोट्स विल बी देयर. विजुअलाइजेशन ऑफ सिनॉप्टिकल नोट्स. लेकिन बच्चे, इस स्टेज में आने में हमें टाइम लगता है. तुम चाहोगे कि 2-3 लिखने के बाद हम स्टेज को अटेंड कर ले, नहीं. सचिन तेंदुलकर बनने में टाइम लगता है. बैट वही होता है, बॉल वही होता है, बॉलर भी वही होता है. नो टेंशन एट ऑल. Are you getting? Same thing is there, but it requires purification. Accuracy depends upon your practice. चलो यार, हम थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट देंगे, बाकी तुम प्रैक्टिस करना, राइट. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ सिनॉप्टिकल नोट्स. अब सिनॉप्टिकल नोट जब तुम्हारा बन चुका है तो कुछ करना है? कुछ नहीं करना है यार, इसको आंसर शीट में लिख डालना है. सो आंसर शीट में लिख डालना, ऐसे ही नहीं लिख डालना है. Answer sheet may you have to present the information not in the way you want. No, it is the standard way. First important intro para we have to write. We have to explain each and every point under this one. Body para is there, and another important concluding para is there. What is the requirement of intro para? What is requirement of concluding para? How systematization will be done? बच्चे ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेज नंबर 4 में. So these are the 4 important stage. First important locus and focus. इसके बाद डायरेक्शन ऑफ डिमांड तुम समझ जाते हो. देन उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड सिनॉप्टिकल नोट्स बना देते हो. देन एक्सप्लेनेशन कर देते हो, गेम ओवर. देन आंसर इज बीइंग प्रेजेंटेड हियर. सो आंसर को हम ये नहीं कहेंगे लिखा हुआ है, आंसर इज बीइंग व्हाट? प्रेजेंटेड. आई एश्योर यू 80% ऑफ मार्क्स एटलीस्ट यू आर गेटिंग, राइट. The very important fact is there, what is called this is the locus and focus, direction of demand, drafting the synoptical notes and explanation of synoptical notes here. Clear? Right? Good. And then and thereafter, चलो एक एरिया को आज डिस्कस करेंगे, what is called the finding locus and focus of the demand of the question, locus and focus of the question. So okay then, ready? रेडी हो तुम लोग? यार इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, नहीं तो इंटरेक्शन होता तो मज़ा आ जाता सिस्टम में, राइट. तो चलो, इट्स ओके देन, इसको पहले समझते हैं, देन वी हैव टू गो फॉर दिस वन. सो फर्स्ट स्टेज इज देयर, फाइंडिंग लोकस एंड फोकस ऑफ द क्वेश्चन, राइट. अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. से इफ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, द क्वेश्चन, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा, राइट, द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक, इट इज द टॉपिक from where the question is being asked. Just like for example, President of India, the topic is there,
The question is being asked here. The question is being asked, President of India, में many things are there. कि election of the president is there, what is called, impeachment is the particular, role and the function, presidential activism, discretionary power, many things are there, right? So if the question is being asked from the President of India, then you have to write each and everything. No. Then question will be asked from the certain aspect. Say this aspect is there. यहाँ से question किया. तो this is called region of demand. This is called the region of demand. इसको हम लोग बोलेंगे region of demand of the question, and this is also known as the locus of the question. लेकिन बच्चे ये सिर्फ इतना से नहीं, सब कुछ नहीं लिखना है. इसमें भी एक पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बेसिकली पूछा है. दिस इज कॉल्ड द रियल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिमांड. पॉइंट ऑफ डिमांड, and this point of demand is called the focus of the question, right? तो हमें कुछ नहीं करना, इस जो छोटा सा एरिया है ना, उसको निकाल करके पूरे आंसर शीट में प्रेजेंट करना. Any answer is nothing but explanation of the focus. ये एक टॉर्च टाइप का है. टॉर्च होता है ना, पर्टिकुलरली टॉर्च को तुमने जैसे ही ऑन किया, देन एंड देयर आफ्टर it is being exploded, only one focus is being exploded here. हमें इधर का नहीं लिखना कोरोना टाइप. No, we have to present the information in the focus. इसको समझना is the first stage. समझ जाओ, 20% presentation you have finished. If you are going to understand locus and the focus of the demand of the question. बच्चे इतना जल्दी बोल दिया हमने, इतना इजली बोल दिया, ऐसा होता नहीं है, राइट? तो यार इसमें क्या है ना, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं, बट understand, try to understand here. First important is said to be example I am giving you. This is called, just like for example one question is there, try to understand the question is there. उसके पहले हम लोगों ने इसको देखा. The question is very clear. देखो शायद तुम्हारे सामने क्लियर है. This is the question. Comment, Article 78 confers executive power to the president. Article 78 confers executive powers to the president. ये क्वेश्चन है, इसको कमेंट करना. कमेंट का मतलब इसको प्रूव करना. That this question has been asked from where? From the President of India. Article 78 confers executive power to the president. तो देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा? भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. This President of India having the election to the President of India, powers and authority of the President of India. This is called, next important is said to be impeachment of the President of India. So many things are there. This question has been asked from where? Powers. Powers of the President of India. चलो powers, right? अब powers को लेके चलते हैं. If you expand the powers, then you may find out executive power of the President of India, legislative power of President, military power of the President is there, diplomatic power, judicial power, सब लिख डालोगे? नहीं, this question is coming from executive power, right? Executive powers are concerned, इसको अब expand करते हैं. Then executive power, many things are there. Article 53 is also giving executive power. Article 75 is also there. Article 77 is also there. Article 78 is also there. सब लिख डालोगे? नहीं, only 78. 78 ये हुआ बच्चे focus. The executive power of the President of India is the locus, and this Article 78 is called the focus. इसी को यहाँ पर डील किया. लोकस इसका क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. समझ रहे हो ना मैप से? एंड फोकस इज व्हाट? फोकस इज आर्टिकल 78. तो हमें डिस्क्राइब करना है इन आंसर शीट आर्टिकल 78 ओनली, नॉट आर्टिकल 53, आर्टिकल 75, 77 लेजिस्लेटिव पावर. अगर तुम लिख रहे हो, यू आर आउट ऑफ द डिमांड. सुपरफ्लुअस इंफॉर्मेशन, यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स. दैट्स क्लियर. तो कंप्लीट वी हैव टू कम अंडर द पॉइंट ऑफ द डिमांड. डिमांड के एकदम पॉइंट में लिखना है. अब आंसर में सिर्फ आर्टिकल 78 होगा, जिसमें हम प्रूफ करेंगे सुपीरियरिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विथ रिस्पेक्ट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नथिंग मोर देन दैट. आर्टिकल 78 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अंडर दिस वी हैव टू से ड्यूटी नंबर 1, 2, 3, 3 ड्यूटी दिया. इसको एक्सप्लेन करेंगे एंड ये कहने की कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट इज सुपीरियर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर.
दैट्स क्लियर, राइट। ये है फोकस, इसमें सब नहीं लिखना, सिर्फ यही लिखना है, राइट। डन। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं, राइट। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये देखो 2019 का पेपर का क्वेश्चन है, राइट। दिस टाइम 2019 पेपर का, इसी साल का। द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कस। सो व्हाट इज द लोकस? लोकस इज अटॉर्नी जनरल, तो हमें तो अटॉर्नी जनरल लिखना है, नहीं सीएजी लिखने लगे। फोकस इज व्हाट? रोल ऑफ एजीआई एज एडवोकेट to the government of India, as the chief legal advisor to the government of India. दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स ओवर। दैट इज वेरी ग्रेट। अब इसमें हम unnecessarily we have not to write कि AG is appointed by the president and appointment is this procedure, और उसका सैलरी इतना मिलता है and particular on the pleasure इसको रिमूव, ये सब नहीं करना हमें। वैसा पॉइंट पे आओ, सीधे इसको एक्सपैंड करो सिस्टम में। एक लाइन का इंट्रोडक्शन दिया, इट्स ओके, एंड देन एंड देयर आफ्टर वी हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। दिस इज द लोकस, दिस इज द फोकस। यू आर वर्किंग अंडर द फोकस, यू आर अंडर द डिमांड ऑफ द फोकस। क्लियर? चलिए एक और लेते हैं यार। ये देखो IAS 2019 ऑल्सो इट हैज टू से UPSC इज नॉट ओनली द रिक्रूटमेंट एजेंसी बट ऑल्सो गार्जियन ऑफ सिविल सर्वेंट। कहाँ से क्वेश्चन है? दिस इज फ्रॉम द UPSC। एंड व्हाट इज द UPSC? Would you like to write the member? Would you like to write the independence of UPSC? If you would like to write limitation of UPSC, you have to write reforms related to UPSC. If you have to write the reforms related to Kothari committee, Satish Chandra committee, ये सब लिखोगे? नहीं लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सिर्फ role of the UPSC as central recruitment agency, another important guardian of the civil servant. This is the focus basically, and your answer should have only this particular explanation under the answer set. If you are writing the independence of UPSC, if you are writing the that is the composition of UPSC, if you are writing functional limitation of UPSC, if you are writing Kothari committee, if you are writing Satish Chandra committee, if you are writing second ARC recommendation, no matters, only these matters. फोकस में काम करना, एकदम फोकस में आओ, दैट्स वेरी क्लियर, राइट। चलो बच्चे एक और एग्जांपल लेते हैं यार, अब तुम लोग समझ चुके होगे। दिस इज सेट टू बी द सेम काइंड ऑफ स्लाइड, रिपीट हो गया, चलो इट्स ओके। देन अब आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न देखो यहाँ पर है, दिस इज द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट established doubts over the promotion of digital terrorism due to prevalence of the negative consequence of the modern age. तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लिटरेचर में, पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम विच पर्टिकुलर एरिया? टेररिज्म। यहाँ पर क्लियर है ना, फ्रॉम विच पर्टिकुलर एरिया? दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द टेररिज्म। यहाँ पर कोई बिवेरियन ब्यूरोक्रेसी नहीं लिखेंगे, क्लासिकल थ्योरी का एरिया नहीं लिखेंगे, मेयो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ओनली द टेररिज्म। टेररिज्म, वुड यू लाइक टू राइट द प्रिंसिपल ऑफ टेररिज्म? नहीं, वी हैव टू राइट ओनली द डिजिटल टेररिज्म। तो डिजिटल टेररिज्म इज द लोकस इज कंसर्न्ड, यहाँ से क्वेश्चन आया। और डिजिटल टेररिज्म वेदर इट इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इसने कहा है हैज टू क्लियर डाउट्स। तो डाउट्स का मतलब कि वी हैव टू मेंशन द रैशनल ऑफ द डिजिटल टेररिज्म इन द प्रेजेंट सिचुएशन। तो वी हैव टू से हियर दैट automatically if the question is also being asked here, then locus is what? Contemporary issue related to the terrorism. Contemporary issue means the digital terrorism and debate upon the relevance of the digital terrorism. अब इसी को हमें एक्सप्लेन करना है, हमें नहीं लिखना the four principle of terrorism, हमें नहीं लिखना criticism of the terrorism, all kind of criticism of the terrorism. We have not to say the relevance of the terrorism, we have to just very important tied with self a relevance of the terrorism. That's very clear. Game over, right? If you say this particular question, the separation of procedure from the principle refer to the significant distinction between terrorism and fuelism. Clear है यार, terrorism and fuelism, ये हमारा clear है, terrorism versus what? Fuelism. बस यहीं पे हमारा focus है. And we have to make the differentiation under this one. We have to say here कि this terrorism has to believe in procedure and this fuelism has to believe in the principle, and this has to make the difference between these two. Why first point this one, second point this one, third point this one, ये लिखा, game over, focus में काम कर रहे हैं. Clear? So this is called
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। इसी को देखो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि व्हाट इज द फोर लोकस, फ्यूलिज्म वर्सेस टेलरिज्म। बट व्हाट इज द फोकस हियर? कॉन्ट्रोडिक्टरी रिलेशन बिटवीन द फ्यूलिज्म एंड टेलरिज्म ड्यू टू प्रोसेस एंड द प्रिंसिपल डायकोटोमी। बच्चे अगर इसको समझ गए, ये हमारा फोकस है, पूरे आंसर शीट में ही आएगा। टेलरिज्म का बकवास नहीं करेंगे, फ्यूलिज्म का ही बकवास नहीं करेंगे, 100% जो हमसे पूछा उसको लिख डालेंगे। दिस इज कॉल्ड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? चलो एक और देख लेते हैं यार, हमारे पास में भी बहुत सारी चीजें। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस हैज टू से हियर दैट इज the scholastic change and the situational dynamics have been expanding the scope of public administration since Wilsonian age. Wilsonian age यानी Wilsonian age means 1887 से हम लोग अगर हम देखते हैं, then scope of public administration is getting changed. ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया, राइट? इतना बढ़ गया। उसके पीछे कौन कौन सा फैक्टर है? टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वन इज द स्कॉलिस्टिक चेंज, अनदर इंपॉर्टेंट द सिचुएशनल डायनामिक्स। सो स्कॉलिस्टिक चेंज हियर, अनदर इंपॉर्टेंट सिचुएशनल डायनामिक्स हियर, राइट? Then two factors are there. What situational change leads to a scope and what kind of the situational dynamic lead to a expanding scope of public administration? Game over. We have not to write anything else. We have to just explain under two paragraph कि this is स्कॉलिस्टिक चेंज जिसने ये चीज को 1807 से स्कोप को बढ़ा दिया। दिस इज द सिचुएशनल चेंज जिसने इतना कुछ करके बढ़ा दिया। एलपीजी इज द सिचुएशनल चेंज, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन सिचुएशनल चेंज, पीसीपी सिचुएशनल चेंज, एनपीएस एनपीएम सिचुएशनल चेंज इज गोइंग टू हैपन। स्कॉलिस्टिक चेंज हैज बीन टेकन प्लेस, मेओइज्म हैज टू कम अंडर स्कॉलिस्टिक चेंज एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट हैज टू कम अंडर द स्कॉलिस्टिक चेंज। दैट्स क्लियर। We have to write here, अगर हम कहें कि what is the locus of this one, the locus is very clear, that is called the scope of public administration since Wilsonian age, but expanding scope लिखना है basically due to change in scholastic, change in situational dynamics. Over. कुछ है? Nothing. Demand of the question is very very important fact. लोग नहीं करते सर। 75% आई एम टेलिंग यू ना, उसने देख लिया टेलरिज्म, टेलरिज्म ही लिखना शुरू कर देते। क्या लिखना है नहीं लिखना वैसा पता नहीं। नो, अंडर द फोकस पॉइंट ऑफ डिमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट? एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर, अब तक तुम लोग समझ चुके हो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट? तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन हमें लगता है कि तुम लोग समझ चुके। कैसे समझे? फाइंडिंग द लोकस एंड फोकस ऑफ द क्वेश्चन। सब कुछ नहीं लिखना है, ओनली फोकस को एक्सपेंड करना है। अब तुम बच्चे डिमांड समझ चुके हो तो करोगे क्या? यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ डिमांड, बिकॉज सेकंड स्टेज हैज टू से व्हाट? डायरेक्शन ऑफ डिमांड। और डायरेक्शन ऑफ डिमांड तुम समझोगे कैसे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया इसको यार हम लोग ना अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट मेक फॉर डायरेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट because at that particular time we will have to make discussion about अगर एग्जामिन हुआ then which direction, अगर critical examine हुआ then which direction, अगर comment हुआ then which direction, elucidate हुआ then which direction, another analyze हुआ which direction, critical analyze हुआ which direction। ये बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है। डोंट मिस, आई विल मीट यू in the next lecture session, right? For the time being, thank you very much for watching the video.